So it's working now. So let's just see now if we know about what we see. We have seen that TDM is actually of two types: synchronous and asynchronous time division multiple access. Time division multiplexing we can do based on whether it's a CDM or whether it's TDM में synchronization and non-synchronous time division multiple access. Difference देख लिया कि synchronous में हमें fixed time slots होते हैं. Time slot is already predefined and fixed, so you cannot change it dynamically even if the current user does not have any data to send. So you will send an empty slot. So this is not actually good because it takes the channel capacity and reduces the utilization of bandwidth. But yeah, it's needed for synchronization purpose, for maintaining everything in synchronization. And whereas asynchronous time division multiplexing has a feature like you cannot you can skip some users if they don't have anything to send, so you will not send the slot regarding them. So it will reduce the content on the channel, so it will effective channel utilization, effective bandwidth utilization. The number of users can maybe more, and number of users is n, and there is a relationship between that. In synchronous, both the number of users and slot are equal. In this, the number of slot can be less than total number of users because some users are not sending data. So yeah, these are the three key points about that. And there are some more key points which we know, but let's just think about the FDM, TDMA, CDMA. Okay, not multiplexing but multiple access. What does it mean to do a multiple frequency division multiple access? It means that doing multiple access based on frequency. So yeah, there is a frequency band which is given to everyone, and it has been divided among everyone. So this is a particular frequency, like 91.1 frequency will be used by Radio City FM, and maybe 104.8 will be used by some any other, maybe like by any other FM radio. So this is something like there is a frequency band, and the particular frequency slots has been divided to some person. So a particular person. So yeah, every we have divided this frequency band into multiple frequency you can say sub band, and this has been given to particular use. Of FDMA is just you are having a frequency range, and then you are divided your frequency range and giving it to particular users. It assigns individual channels and individual and different users are using assign different traffic channel, right? Assigns individual channels and individual and different users are used. Assume the different traffic channel. Each user is allocated a unique frequency. Okay, each user is allocated a unique frequency or a frequency, small kind of frequency band, but you can say a unique frequency. And during a cell call period, no other user can use the same channel. They cannot use the same frequency, I guess. ना इसमें गार्ड बैंड होता है दो फ्रीक्वेंसी के बीच में, क्योंकि भाई मान लो जैसे रेडियो सिटी से कब तुम्हारा चेंज हुआ मिर्ची पे, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए ना. जैसे तुमने 91 से बढ़ाते गए एक पर्टिकुलर ऐसी रेडियो वेव होगी, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जिसके बाद वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, 91 से लेके मेरे ख्याल से 91.0 से लेके 91.2 तक तुम्हारा मिर्ची चलेगा या फिर रेडियो सिटी चलेगा, और फिर 91.3 से तुम्हारा दूसरा होगा. तो थोड़ा सा गार्ड बैंड रखना पड़ता है बीच में. ऐसा डायरेक्टली एग्जैक्टली एक पॉइंट के बेसिस पे नहीं कर सकते कि दिस इज 91.1 पे सिटी मिर्ची है, रेडियो सिटी है, और 91.2 पे सिटी मिर्ची है, ऐसा कुछ है. तो यू कैन नॉट डू दैट, बट थोड़ा सा एक गार्ड बैंड रखना पड़ेगा, थोड़ी सी एक सेफ साइड लेके चलना पड़ेगा, थोड़ा सा एक गैप रखना पड़ेगा बिटवीन टू यूजर्स और टू फ्रीक्वेंसी which are dividing. तो टू reduce the interference, इसका मकसद यही है कि भाई दोनों आपस में मतलब इंटरफेरेंस ना हो जाए, मतलब दोनों घिच पिच मतलब नॉइस वॉइस, समझ रहे हो. इंटरफेरेंस होएगा तो बहुत पंगे होंगे, तो इंटरफेरेंस नहीं चाहिए. रिड्यूस द इंटरफेरेंस. एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैरियर ओनली वन फोन सर्किट एट टाइम. इट कैरीज वन फोन कॉल एट अ टाइम. ओके, इफ चैनल इज नॉट यूज देन आइडल रहेगा. अगर वो फ्रीक्वेंसी यूज़ नहीं हो रही तो वो आइडल रहेगी. वो किसी और को तुम नहीं दे सकते कि भाई 2 मिनट के कोई और बंदा आके यहाँ पे यूज़ कर ले और उसके बाद फिर तुम बचा देना. ये चीज़ यहाँ पे नहीं हो सकती, पर ये टाइम डिवीजन में हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे हम टाइम के बेसिस पे डिवाइड करते हैं कि अगले आधे घंटे के लिए ये चैनल इस बंदे के पास है, या अगले आधे घंटे के लिए ये बंदा ये भेजेगा. ठीक है, तो ऐसा होता है उसमें कि चैनल कभी आइडल नहीं रहता. इसमें चैनल आइडल रह सकता है.
एंड दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन FDMA एंड TDMA इफ यू टॉक अबाउट जनरल कैरेक्टरिस्टिक और टाइम के बेसिस पे, राइट. सो लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स एंड भाई तुम कितनी फ्रिक्वेंसी कैसे बांट सको, ठीक है. तो ऐसे ही बांटेंगे जितने यूजर्स होंगे उस हिसाब, मतलब एक ही लिमिट ही तो है ना, कि मतलब तुम्हारे पास फ्रिक्वेंसी अनलिमिटेड तो नहीं है ना, एक बैंड ही है. ओके, लेस कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सिंपल होता है ये, मतलब सिंपल दे दिया हमने फ्रिक्वेंसी. अब TDMA आई थिंक देखो दो अप्रोच है इसको समझने की, दो मेथड बताते हैं लोग जनरली, कि TDMA इज अ लेयर ऑन टॉप ऑफ FDMA और TDMA इज जस्ट अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. सो ये दो मेथड हैं इसके, दो इसकी तरीके हैं इसको पढ़ने के. तो अभी मैं अगर बात करूँ, मेरे को जो ज़्यादा सही लगा वो है कि TDMA इज, अगर मैं रियल लाइफ का वर्ल्ड का सीधा एग्जांपल दूंगा, तुम एक सेकंड में कनेक्ट कर जाओगे कि वाई TDMA इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ FDMA. चैनल होते हैं, वो टीवी देखते हो सारे, ठीक है, उसमें तुम्हारे चैनल होते हैं. चैनल मतलब 101 है, 102 है, मान लो 101 पे स्टार प्लस चलता है, 102 पे ZTV चलता है, ठीक है. तो अब जो एक चैनल है उसमें पूरे दिन में अलग अलग एपिसोड आते हैं, ठीक है. सुबह कोई बंदा आ रहा है, शाम को कोई बंदा आ रहा है, रात को कोई और बंदा आ रहा है. तो वो चीज़ कैसे, ये डिवीजन है. पहले मैंने क्या करा, चैनल डिवाइड कर दिया बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है. तो ये पहली लेयर हो गई मेरी, कि मैंने फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, मतलब मान लो मेरे को 200 चैनल देने थे, मैंने 200 बंदों को 200 चैनल दे दिए, ठीक है. अब वो चैनल ओनर्स हैं, अब उनके पास 10 और बंदे हैं जो बोलेगा कि भाई मेरे को सुबह 10 बजे आना है, वो बोलेगा मेरे को 10:30 बजे आना है, मेरे को 12 बजे आना है, मेरे को दिन में आना है, मेरे को रात में आना है, मेरे को शाम को आना है. उस हिसाब से एक दिन के अंदर भी चैनल जैसे चलते हैं यार, मतलब वही कह रहा हूँ मैं, मतलब एक चैनल हो गया, अब उसमें भी 10 एपिसोड आते हैं एक दिन में, मतलब कभी कोई बंदा आता है, ठीक है. तो वो टाइम डिवीजन है. पहले कर दिया हमने फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे डिवीजन, की ये चैनल ये है, ये स्टार प्लस है, ये ZTV है, ये वो है. एंड देन स्टार प्लस में अब डिवीजन कैसे हो रहा है, टाइम के बेसिस की, भाई 10 बजे ये आ रहा है, 11 बजे आ रहा है, और फिर रात को ये आ रहा है, शाम को ये आ रहा है. तो ये हो गया हमारा टाइम डिवीजन. तो ऐसे मैंने इसको समझा. पर टाइम डिवीजन तुम कह सकते हो कि भाई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारे बंदे सेम फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं. मान लो दुनिया भर के जितने भी चैनल हैं एक ही फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं, पर टाइम डिवीजन है कि मतलब शुरू का 1 घंटा इसको, फिर 1 घंटा, पर इतने घंटे होते नहीं है दिन में. पर समझ रहे हो, मतलब जैसे मतलब बस सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है और सब टाइम के, मतलब ये फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 100 गीगाहर्ट्ज़ की, तो ये फ्रीक्वेंसी सब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. मान लो कुछ भी फ्रीक्वेंसी है, मान लो 150 फ्रीक्वेंसी सारी यूज़ करेंगे, पर टाइम के बेसिस पे यूज़ करेंगे. शुरू के 10 मिनट में ये यूज़ करेगा, अगले 10 मिनट में ये यूज़ करेगा, या ऐसा कुछ है 1 घंटे में ये यूज़ कर रहा है, अगले घंटे वो यूज़ कर रहा है. तो ऐसा मान लो. पर ये अप्रोच मेरे को इतनी सही लगी नहीं, क्योंकि फ़ायदा क्या हुआ, मतलब कि तुम एक ही फ्रीक्वेंसी है तुम्हारे पास, इस दुनिया में हो तो नहीं सकता ना, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी को बंदे यूज़ कर रहे हैं, एक चैनल को यूज़ कर रहे हैं बेस्ड ऑन टाइम, कि भाई पहले घंटे में ये बंदा यूज़ कर रहा है, दूसरे घंटे में ये बंदा यूज़ कर रहा है. तो बहुत छोटा हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट तुम हटा नहीं सकते, ठीक है. मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट तुमने हटा ही दिया इसमें. तो मतलब कि तुम बात कर रहे हो कि चैनल इस बंदे ने 1 घंटे के लिए ले लिया, अब चैनल में भी तो भाई इतनी सारी फ्रीक्वेंसी है ना, एक फ्रीक्वेंसी का थोड़ा चैनल है, वो तो हमने पहली ही बात कर ली ना. पर उसमें ये था कि भाई बंदे को दे दिया तो दे दिया, स्टार प्लस को दे दिया तो दे ही दिया. अब उसमें डिवीज़न ही नहीं करा कि भाई वो बंदा पूरे दिन या तो अपना चल रहा है, या जब उसको नहीं करना तो बंद पड़ा उस टाइम पे, तो उसको यूटिलाइज़ करने के लिए मैंने ये कर लिया. पता नहीं है, तुम दोनों तरीके देख सकते हो. मैंने तुमने बेटर वाला बता दिया कि पहले चैनल का एग्जांपल देके, पहली लेयर है FDMA, दूसरी लेयर है TDMA सीधी. और ये यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है यार, इसलिए मैंने बोला, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी बैंड इसने बांट दिया. अब इसमें TB1 TB2 TB3 बना दिया, ठीक है. और FB1 FB2 FB3 ये 3 फ्रीक्वेंसी बैंड इसने बांट दिए कि ये भाई ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी बैंड है, ये मान लो ये चैनल नंबर 1 है या 101 है, एंड फ्रीक्वेंसी बैंड 2 ये दूसरा चैनल है, ये ZTV है, और तीसरा मान लो कलर्स है, कोई और चैनल है. तो ये तीनों चैनल मैंने बांट दिए. अब इसमें तुम टाइम के बेसिस पे स्लॉटिंग कर लोगे, भाई सुबह 12 बजे इसको आना है, दिन में इसको आना है, रात को इसको आना है, ठीक है. तो ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है. अवेलेबल स्पेक्ट्रम इज डिवाइडेड पार्टीशन इनटू नैरो फ्रीक्वेंसी बैंड. पहले फ्रीक्वेंसी बैंड बांट ली, चैनल विच टर्म्स डिवाइडेड इनटू द नंबर ऑफ टाइम स्लॉट्स में बांट लिया. तो भाई मेरी अप्रोच मेरे को ज़्यादा सही लग रही है, जो मैंने बताई तुम्हें पहले वाली. ओके, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, एंड इन ईच स्लॉट ओनली यूज़र इज़ अलाउड टू ईदर ट्रांसमिट और रिसीव. कि भाई बंदा या तो ट्रांसमिट करेगा या तो रिसीव करेगा, मान लो, ठीक है. दोनों की नहीं कर सकता भाई. फ्रीक्वेंसी में वो दोनों कर सकता था आई गेस, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी यूज़ हुई है, उसमें वो दोनों कर सकता है, ठीक है. ओनली वन यूज़र इज़ अलाउड टू ईदर ट्रांस, ओनली वन यूज़र इज़ अलाउड. आई थिंक इसका मतलब यही है, बस एक ही बंदा, ठीक है. दिस फ्रीक्वेंसी बैंड इज़ यूज्ड बाय वन यूज़र. और फीचर्स क्या हैं, सिंगल करियर फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट यूज्ड फॉर
सेवरल यूज़र, सिंगल करियर फ्रिक्वेंसी इज़ यूज फॉर सेवरल यूज़र, ये इसके फीचर हैं और इसके एडवांटेजेस भी हैं। एक ही फ्रिक्वेंसी कई बंदे यूज़ कर रहे हैं भाई, मतलब मान लो स्टार प्लस है तो उसको भाई 10 बंदे यूज़ कर रहे हैं, कोई किसी टाइम आ रहा है कोई किसी टाइम आ रहा है, ठीक है। डिफरेंट टाइम स्लॉट आर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग, सो डुप्लेक्स आर नॉट यूज्ड। अच्छा, इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि भाई एक टाइम पे ये रिसीव करेगा, एक टाइम पे ये ट्रांसमिट करेगा, तो डुप्लेक्स का नहीं है इसमें, डुप्लेक्स नॉट रिक्वायर्ड। ये उसमें टाइमिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था कि भाई मतलब जो है फ्रीक्वेंसी है तो डुप्लेक्सिंग चाहिए थी उसे, ठीक है। एंड डेटा ट्रांसफर इज बर्स्ट नॉट क्या लिखा है भाई, बर्स्ट डेटा ट्रांसफर होता है नॉट कंटिन्यूस, ठीक है। ऐसा नहीं भाई कंटिन्यूस डेटा जा रहा है वो इसमें बर्स्ट होता है, इसलिए फट से भेज दिया, देन फिर किसी और बंदे ने आ लिया वो चैनल, दूसरे बंदे ने कैप्चर कर लिया, फिर वो फट से भेजेगा, तो ऐसे बर्स्ट डेटा ट्रांसफर हो रहा है कि मान लो मतलब समझ रहे हो, कंटिन्यूस डेटा नहीं है कि यार ये बंदा पूरा भेजेगा धीरे 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 और फिर जब ख़त्म हो जाएगा तब दूसरा बंदा आएगा, ऐसा नहीं है। आई थिंक टाइम मैंने पहले डिवाइड कर दिया यार, नहीं भी करा तो मतलब एक फिक्स्ड फ्रेम दे दिए कि भाई तुम इतना भेज दो फटाफट से, और फिर दूसरा बंदा आके भेजेगा, फिर दूसरा, फिर दोबारा इसकी बारी तब आएगी जब सारे बंदे भेज चुके हैं। जैसे कि अब जो आज स्टार प्लस पे 11 बजे आया वो तभी आएगा, अगले दिन ही आ सकता है वो 11 बजे, ठीक है। आई थिंक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अब पता नहीं है, बस्ट वाला देखना पड़ेगा। CDM में भाई ये बहुत कैडी चीज़ है, बहुत कैडी लेयर है CDM में। अब मेरे हिसाब से देखोगे तो भाई फिर से वही बताता हूँ कि पहली लेयर आई FDM में, दूसरी लेयर आई TDM में, तीसरी लेयर आएगी CDM में। इट्स बिल्ट ऑन टॉप ऑफ FDM एंड TDM में, राइट। सो इन CDM में अ यूनिक कोड हैज़ बीन गिवन टू यू, ठीक है। ये यूनिक कोड होगा जिससे ट्रांसमिशन डिफाइन होगी। तो अभी क्या कर रहे थे कि अभी एक फ्रीक्वेंसी थी पहले हमारे पास, तो मैं बोल रहा था इस फ्रीक्वेंसी में एक ही बंदा ट्रैवल करेगा, लाइक अगर स्टार प्लस है तो एक ही बंदा चलेगा पूरे दिन, चाहे उसके पास कुछ है दिखाने के लिए या नहीं है, तो चलना तेरे को ही है। फिर मैंने कहा कि भाई अच्छा चल नहीं है तेरे पे दिखाने के लिए तो कर ले, टाइम स्लॉटिंग कर ले। तो अब जब तेरे पे नहीं होगा दिखाने के लिए दूसरे को दे दियो, फ्री कर दियो, ठीक है। तो दूसरा बंदा आ जाएगा, फिर दूसरा बंदा, फिर दूसरा बंदा। अब मान लो ये टाइम है एक पर्टिकुलर टाइम और ये फ्रीक्वेंसी है, अब इस पर एक ही बंदा चल सकता है कि भाई जो 11 से 12 का टाइम है ना भाई, एक ही बंदा आएगा उस टाइम स्टार प्लस पे, दूसरा बंदा नहीं आ सकता। तो अब ये बोला CDM में बोला कि नहीं, ज़्यादा बंदे आ सकते हैं एक ही फ्रीक्वेंसी पे, एक ही टाइम पे कई सारे बंदे आ सकते हैं। तो कोलिजन हो गया? नहीं हुआ कोलिजन, क्योंकि बहुत सारा फालतू डेटा आ गया, ठीक है। पर कोलिजन प्रिवेंट करना है तो हम ये करेंगे कि एक प्रोटोकॉल होता है, एक कोड होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है इस कम्युनिकेशन को, ठीक है। तो इन दोनों यूज़र जो कनेक्ट कर रहे थे उसको उनके कॉरस्पॉन्डिंग एक कोड है, और जो नया बंदा आया उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक अलग कोड है, ठीक है। ऐसा मान के चलो, ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक अलग कोड है। तो यार ये हो जाएगा कि जो बंदे, अरे यार, तो जो बंदे पहले वाले बंदे को सुनना चाह रहे हैं, ठीक है, वो सुन पा रहे हैं, क्योंकि वो बंदा तो बोल ही रहा है ना, साथ में दूसरा भी फालतू बोलने लग गया जिसको तुम सुनना नहीं चाहते, पर कोई और दूसरा बंदा हो सकता है जो उसे सुनना चाहे, ठीक है। मान लो स्टार प्लस पे 2 शो आ रहे हैं एक ही साथ में, ठीक है, फॉर एग्जांपल A और B, तुम्हारा इंटरेस्ट A में है तो तुम A को सुन रहे हो, दूसरे का इंटरेस्ट B है, वो A और B साथ में चल रहे हैं। ऐसा पॉसिबल है? हाँ ऐसा पॉसिबल है। अगर दोनों सेम लैंग्वेज में बोलेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल कि भाई ये भी ये सेम चीज़ बोल रहे हैं, ये भी कुछ उससे हल्की फुल्की डिफरेंट बोल रहे हैं, नहीं, दोनों हिंदी बोल रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। पर एक हिंदी बोल रहा है एक इंग्लिश बोल रहा है तो आसान है ना तुम्हारे पास हिंदी पे कॉन्सेंट्रेट करना या इंग्लिश पे कॉन्सेंट्रेट करना। ये बस एग्जांपल है, कोड की बात होती है मेनली, जो इसको एक ही कोड समझ आ रहा है इसको सामने वाले बंदे का कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो इंग्लिश हिंदी तो ऐसी चीज़ है कि जो फिर भी इंसान को समझ आती है, मतलब इंसानों को एक्सप्रेशन भी समझ आते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, कई बार देख के पता चल जाता है ना हाथ पैर कैसे ला रहा है, ठीक है। पर जो कोड है मशीन जैसे ट्रांसफ़र कर रही है डेटा, मशीन जैसे कम्युनिकेट कर रही है, तो ये मशीन जैसे 2 मशीन साथ में चल रही हैं और मतलब कम्युनिकेशन हो पा रहा है। बाकी जो डेटा उसे चाहिए वो लेगा, जो नहीं चाहिए वो उसको उसका कोड अलग है तो वो बोल देगा कि भाई ये अलग डेटा है तो ये मैं नॉइस में कंसिडर करेगा, वो उसको नहीं लेगा। तो ऐसा चीज़ होती है कि एक ही फ्रीक्वेंसी पे एक ही टाइम पे 10-12 बंदे आ गए साथ में, पर सारे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं क्योंकि सबने अलग अलग कोड लगा रखे हैं और कोई दूसरे बंदे के कोड को समझ नहीं पा रहा। तो मैं जिसका कोड समझना है तुम उसका कोड समझ रहे हो बस, ठीक है। ऐसा है यार, मैसेज सिग्नल इज मल्टीप्लाइड बाय वेरी लार्ज बैंडविड्थ सिग्नल इज कॉल्ड स्प्रेडिंग सिग्नल, पिन कोड है, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय वेरी लार्ज user use the same carrier frequency and transmit simultaneously and user has its own क्या है ये पिन कोड, सबके पास अपना पिन कोड होगा। नो गार्ड बैंड इज़ रिक्वायर्ड, कोई गार्ड बैंड ही नहीं है भाई, अगर लगा दिया तो दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि तुम तो पहले ही इतनी इंटरफेरेंस मचा रहे हो तो फिर क्या गार्ड बैंड करोगे तुम।
तो पिन कोड के बेसिस पे अलग अलग वो उठा लेगा अपना कि स्टेशन S1 कोड है इसका C1 है, S2 का कोड है C2, पिन कोड ये है, डेटा ट्रांसमिट ऐसे करेगा बाय ट्रांसमिटिंग बाय मल्टीप्लेक्सिंग एंड द डेटा ट्रांसमिट ओवर द तो चैनल पे जो आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा C1 D1 C2 D2 C3 DD। अब जिस बंदे को जोन सा चाहिए, जिस बंदे को D1 चाहिए वो D1 निकाल लेगा, जिस बंदे को C1 चाहिए वो C1 निकाल लेगा, ऐसा कुछ होगा। अब ये है कि अब जो C1 C2 अच्छा C1 है जो मैं कोड प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो चलो C1 को मान के चलते हैं। तो जो C1 है डेटा है एंड C1 D1 ठीक है, C1 है कोड, तो D डेटा है, ये गलत लिख रखा है भाई, D डेटा है, C कोड है, C इंटू D कर दिया इसने, डेटा और कोड को मिला दिया, तो C वो है जो बंदे कोड के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो जिसको C1 समझ आता है वही C1 समझ पाएगा, जिसको C2 आता है वो C2 समझ पाएगा। और C1 C2 इतने अलग है कि कोई चाह के भी समझ नहीं सकता दोनों, ठीक है। C1 इंटू C2 दोनों का 0 होगा, ठीक है। तो बस यही है, C1 इंटू C1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेशन, ठीक है भाई। तो ये ऐड होगी तो FDM में TDM CDM में यही है। FDM में फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे सेगमेंटेड करा, गार्ड बैंड होते हैं इसमें, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी दी जाती है हर बंदे को, आइडल रह जाता है चैनल कई टाइम पे, तो वो इसका फीचर है। अब TDM में आया तो नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी में बांटा, फिर टाइम में सेगमेंटेड इनटू डिस्जॉइंट टाइम स्लॉट में बांटा कि टाइम स्लॉट। अब इसमें भी TDM के बाद भी यहाँ पे इसने बताया नहीं, मल्टीपल एक्सेस है यार, ये टाइम के बेसिस पे एक्सेस कैसे कर पा रहे हैं, टाइम के बेसिस पे मल्टीप्लेक्सिंग कैसे कर पा रहे हैं, सच में काम कैसे कर पा रहे हैं, वो है तुम्हारा सिंक्रोनाइज और डिसिंक्रोनाइज के बाद कि हाँ मतलब सिंक्रोनाइज में इक्वल टाइम स्लॉट जा रहे हैं सब हमेशा, और एसिंक्रोनाइज में तुम जिसको चाहिए उसको भेजोगे, जिसको नहीं चाहिए उसको नहीं भेजोगे, टाइम स्लॉट ऐसा कुछ है। Segmented into disjoint time slot, all terminals of same frequency for starting period of time, ठीक है। Time is segmented without a disjoint time slot and all terminals same frequency for starting period of time. Digital signal is used in GSM, different frequency for each terminal user, ठीक है। हमने टाइम को सेगमेंट करा बिटवीन इनटू डिस्जॉइंट टाइम स्लॉट, फ्रीक्वेंसी फॉर स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम। टाइम इज सेगमेंटेड, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी of time, digital signal is used in GSM, different frequency each terminal यूज़र की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, ठीक है। एनालॉग होल्डर्स को यूज़ करते हैं, लेटेस्ट है। CDM में कोड्स आर यूज फॉर अक्रॉस द सिस्टम, ऑल टर्मिनल्स आर एक्टिव साइमल्टेनियसली। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सारे ही बंदे एक साथ भेज पा रहे हैं भाई, बट सब फ्रीक्वेंसी भी सबकी सेम है, टाइम भी सबका सेम है, फिर भी कर पा रहे हैं बिकॉज कोड की वजह से। तो यही था बस। अब मैक प्रोटोकॉल्स की तरफ चलते हैं। तो तुम्हें अब बेसिक तुम कह सकते हो कि जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हें पता है, ठीक है, बट इसको खुद से लिखना, यू नो देयर इज़ अ डिफरेंस। कि अभी तेरे को कोई बोल दे कि भाई तेरे को FDMI के ऊपर पूरा लिखना है, कि तेरे को ये लाइन भी कवर करनी है कि एनालाइजिंग द इंडिविजुअल, तो तेरे को कहाँ से लाइन कवर करनी होगी, यहाँ से। FDMI में फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सेस ये तो लिख सकता है, ठीक है, पर फिर तेरे को सारी लाइनें यहाँ से कवर करनी पड़ेंगी। इट असाइंस इंडिविजुअल चैनल टू इंडिविजुअल यूज़र। दिस इज़ अ वेरी यू नो, अगर लाइन याद करनी पड़ जाए तो ये याद करने के लिए एक चीज़ है, ऐसा नहीं है कि तूने सीधा मुँह उठा के लिख दिया भाई। FDMI क्या होता है, जिसमें हर चैनल हर एक पर्टिकुलर बंदे को असाइंड होता है, असाइन अ पर्टिकुलर चैनल टू अ पर्टिकुलर यूज़र। अच्छा ठीक है, हो गए, देखते हैं। एंड डिफरेंट यूज़र्स आर अज्यूम्ड, क्या यूज़र्स आर असाइंड डिफरेंट ट्रैफिक चैनल। अब वही बात होगी ना, तो सीधा बोल दो कि डिफरेंट यूज़र्स आर गिवन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी चैनल। Different users are given different frequency channel or frequency traffic channel, right? And each user is allocated a certain frequency, ठीक है। यूनिक each user को हम देते हैं यूनिक फ्रीक्वेंसी each।
तो फिर नेक्स्ट पॉइंट तुम्हें लिखना पड़ेगा कि यूजर इज असाइंड यूनिक फ्रीक्वेंसी एंड नो अदर यूजर कैन यूज द फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग वन कॉल, इफ ड्यूरिंग अ फोन कॉल नो अदर यूजर कैन यूज दिस फ्रीक्वेंसी चैनल। और इसमें तुम्हें डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा कि कैसे ये फ्रीक्वेंसी बैंड यूजर 1 का है, ये फ्रीक्वेंसी F2 यूजर 2 की है, ये F3 यूजर 3 का है, और बीच में गार्ड बैंड प्रोवाइड करने पड़ेंगे कि ये गार्ड बैंड होता है टू रिड्यूस इंटरफेरेंस। और फिर कैरेक्टरिस्टिक लिखने पड़ेंगे कि कैरियर ओनली वन फोन कॉल एट अ टाइम, इट कैरीज ओनली वन फोन कॉल एट अ टाइम, ठीक है, कैरियर इट कैरीज वन फोन कॉल एट अ टाइम, इफ चैनल इज नॉट यूज्ड देन आइडल होगा। इफ चैनल यूज नहीं हो रहा तो आइडल पड़ा रहेगा, ठीक है। लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स इफ डिवाइडेड इनटू, ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स होंगे, इसमें लेस कॉम्प्लेक्स होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है क्योंकि भाई लिमिटेड यूजर है ऑब्वियसली, एंड देन लिमिटेड कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए कम है क्योंकि सीधी चीज़ सिंपल है, हर बंदे को हमने स्पेसिफिक चैनल दे दिया, और अगर मान लो उस चैनल पर कोई और बंदा यूज़ ही नहीं कर सकता, चाहे पहला बंदा बात कर रहा है यूज़ कर रहा है चैनल को या नहीं कर रहा हो, फिर भी उसका कोई यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि भाई टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स थोड़ा है, टाइम मतलब भाई तुमने कुछ बोला ही नहीं ना कि भाई तुमने बोल दिया कि भाई फ्रीक्वेंसी पे के बेसिस पे डिवाइड हो रहे हैं, बंदे डिवाइड हो गए, तुमने बोला, बंदों ने डिवाइड कर लिया। अब ये थोड़ा ना बोलेगा बंदा कि यार मैं इसकी फ्रीक्वेंसी यूज़ करना चाह रहा हूँ, अब नया बंदा आगे बोलेगा, वो देखेगा भाई सारे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, अब मैं तो आ ही नहीं सके, तो अब उसमें बात होगी कि भाई चल फिर तेरे को लाने के लिए हम टाइम डिवीजन मार देते हैं, ये फ्रीक्वेंसी इस टाइम खाली रहती है, मैंने पता तो तू इस टाइम पे आ जा, उस बंदे का टाइम स्लॉट कर ले, तो स्लॉट कर लिया मैंने, नैरो फ्रीक्वेंसी बैंड में पहले फटफट करके बांट लिया, देन सबको टाइम फ्रीक्वेंसी में बांट लिया, जितना टाइम उसको चाहिए भाई दो उसको टाइम, उसके बाद इसको टाइम दो, तो ऐसे ऐसे करके बांट दिया हमने TDM में, ठीक है। तो डेफिनेशन इसकी अब क्या तुम खुद से कर सकते हो, TDM तुम ये तो लिखो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स, और कुछ लिख सकते हो कि ईच चैनल इज डिवाइडेड इनटू नैरो फ्रीक्वेंसी बैंड एंड देन अवेलेबल स्पेक्ट्रम इज डिवाइडेड इनटू नैरो फ्रीक्वेंसी बैंड, और चैनल विच इज in terms which channel is further divided into number of time slot, ठीक है, हर एक चैनल को हमने डिवाइड करा नंबर ऑफ टाइम स्लॉट, ये तुम लिख सकते हो, शायद लिख सकते हो, देखते हैं कि each frequency band the available spectrum is partitioned into the frequency band, narrow frequency band, और फिर each channel is also divided into different time slot। तो फिर डायग्राम तो तुम बना ही दोगे, B1 B2 लाइक पहली F1 F2 F3 एंड देन यूज़र तुम काट दोगे, इसमें से टाइम स्लॉट तुम काट दोगे थोड़े थोड़े से, क्या भाई ये T1 है T2 T3, तो ठीक है भाई n स्क्वायर स्लॉट बना दिए। इन ईच स्लॉट ओनली वन यूज़र इज अलाउड टू ईदर ट्रांसमिट, इन ईच स्लॉट ओनली वन यूज़र इज अलाउड टू ईदर ट्रांसमिट और रिसीव। तो भाई स्लॉट ये है जो ये बक्सा बना है यहाँ पे, तो हम ये कह रहे थे भाई ये स्लॉट कैसे जाएंगे, ये स्लॉट क्या, जैसे n बंदे हैं, ठीक है, n बंदे हैं तो स्लॉट कितने दिख रहे हैं भाई तुम्हें, भाई n स्क्वायर स्लॉट दिख रहे हैं मैंने। उसमें बात हुई थी भाई फ्रेम की और स्लॉट की, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस TDM की बात कर रहा हूँ, फ्रेम की और स्लॉट की बात हुई थी, उसमें कहा था कि भाई सबके स्लॉट बराबर कटेंगे, ठीक है, सबके स्लॉट बराबर भेजे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि इसके पास कोई डेटा है ही नहीं भेजने के लिए। अच्छा, तो ऐसा मान लो कि भाई ये जो कटिंग हो रही है ना, प्लॉट की कटिंग हो रही है, ये भाई टी की भाई इसको इतना टाइम मिलेगा भाई, कि भाई T1 दे दिया, T1 टाइम मिलेगा था, तो इस साल को T1 टाइम दे रहा, ठीक है, अंदर इसको T2 टाइम दे रहा, इसको T3 टाइम दे रहा, तो भाई अब बात ये है इसकी जब प्लॉट की कटाई हो रही तो फिर जरूरी तो ना उसको जरूरत हो T1 टाइम की, राइट और नॉट, हो सकता है उसको T1 टाइम की जरूरत ही ना हो, तो सिंक्रोनस TDM में तुमने सारे काट दिया, ऐसी T1 सबको फिक्स दे दिया भाई, सबको TT मिलेगा, सबको TD बांट दिया। अब भाई बंदे को चाहिए ही नहीं था T, वो खाली बैठा, उसको करना ही नहीं कुछ काम, मतलब उस बंदे को चाहिए ही नहीं था T, क्योंकि उसके पास उस टाइम पे कुछ भेजने के लिए है ही नहीं डेटा, तो क्या होगा, तो थोड़ा सा कंजेशन बढ़ रहा है आई थिंक, मतलब चैनल पे है ना कंजेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है तुम्हें, कि अब वो भी बंदा एम्प्टी स्लॉट भेजना पड़ेगा उसे, कि भाई डेटा तो है ही नहीं भेजने के लिए, एम्प्टी स्लॉट ही भेज दो, तो वो कंजेशन बढ़ा रहा, बट उसने काटे ने जब जरूरत है ना तो पोलिट नहीं काटे, तो ये मतलब हम डिवाइड नहीं करेंगे, एंड देन जितने बंदे चाहिए उतने बंदों को डिवाइड करेंगे हम, उनके लिए स्लॉट बांटेंगे, एंड देन उसको चैनल पे भेजेंगे, तो चैनल पे लोड कम होगा, यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा, बैंड विड्थ कम एफिशिएंटली यूज़ होगी, वैसे बैंड विड्थ का कोई चक्कर नहीं होगा, ऑब्वियसली चैनल यूटिलाइजेशन है बस, ठीक है। तो और भी घट और ना, और के पॉइंट थे कि ये पॉइंट आ जाता है कि भाई जितने बंदे हैं उतने स्लॉट होंगे सिंक्रोनस के केस में, एसिंक्रोनस में कम स्लॉट भी हो सकें, कुछ बंदे ना भेजे रहे तो उनके लिए स्लॉट नहीं काटेंगे हम, ठीक है। बस यार तू चले ले जाते हैं फिर से अच्छा चल रहा था, डेफिनेशन से शुरू कर कि ईच चैनल नहीं भाई, अवेलेबल बैंडविड्थ इज डिवाइडेड इनटू नैरो फ्रीक्वेंसी बैंड्स, ठीक है, अवेलेबल स्पेक्ट्रम इज डिवाइडेड इनटू नैरो फ्रीक्वेंसी बैंड, फिर ये अब एक चैनल है इज डिवाइडेड इनटू पर्टिकुलर
time slots, and then each user can is allowed to either transmit or receive. अब इसमें फीचर्स की बात करें भाई, सिंगल कैरियर इज यूज्ड बाय मल्टीपल यूजर, ठीक है, यही कैरियर फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड बाय मल्टीपल यूजर्स एंड डिफरेंट टाइम स्लॉट आर यूज्ड बाय यूजर फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग, ठीक है, हर बंदे को मैंने पर्टिकुलर टाइम स्लॉट दे दी कि इसमें ये ट्रांसमिट करेगा या रिसीव करेगा, ठीक है, एंड डुप्लेक्सेस आर नॉट यूज्ड, इसमें डुप्लेक्सेस यूज क्यों नहीं होते, क्योंकि भाई डुप्लेक्स का कॉन्सेप्ट वही है कि मतलब दो फ्रीक्वेंसी होंगी, जो बंदा एक ही बंदा दो फ्रीक्वेंसी का यूज़ करेगा, एक ट्रांसमिट के लिए, एक रिसीव करने के लिए। अब जब प्लॉट की कटिंग हो गई तो तुम इसी का यूज़ कर लो, है ना, तो डुप्लेक्सेस की जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड एज सच, एंड डेटा ट्रांसफर इज बस्ट डेटा ट्रांसफर होता है मस्ट, नॉट कंटिन्यूअस, दैट इज U1 U2 U3। अच्छा, पहले U1 देखो, जब मैं कह रहा था नहीं इतने लगे ये पहले भेजेगा फिर तो यही है, लाइक जैसे होता है डेली चैनल में कि भाई 11 बजे आवे फिर 12 बजे आवे, ऐसे सारे दिन का चलता है, फिर वो बंदा अगली बार कब आएगा, और जब उसका अगले दिन आएगा, ठीक है, तो U1 पे उसको जितना डेटा भेजना था उसने भेज दिया पहली बार जब उसको 11 बजे टाइम मिला, और भी तो डेटा है ना भेजने के लिए, ऐसा तो नहीं है कि बस यही भेजना था, तो अगला डेटा वो तब भेजेगा जब पहले सारे दिखा लेंगे, उसके बाद U1 जब दोबारा आएगा साइक्लिक रोटेशन में तब भेजेगा। तो बस डेटा है कि भाई जैसे मिला तुरंत पट भेज दो, और फिर दूसरा बंदा आएगा पट भेज देगा, तीसरा बंदा आएगा पट भेज देगा, हो सकता है अभी सारा भेजना कम मिलेगा जब सारे साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, तो ऐसा वो सीन है। CDMA की बात कर ली यार कि मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी है, एक ही टाइम पे कई सारे बंदे यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर पा रहे हैं, सबका कोड अलग है, ठीक है, और कोई एक दूसरे का कोड समझ नहीं पा रहा, क्योंकि कोड की प्रॉपर्टी क्या है, C1 इंटू C2 0 है, और C1 का इंटू C1 आई थिंक द नंबर ऑफ वो है, तो हेयर मैसेज सिग्नल, अब इसके बारे में लिखने की बात आई तो क्या करेगा, हेयर मैसेज सिग्नल इज मल्टीप्लाइड, हम मैसेज सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं बाय अ सीक्रेट कोड कॉल्ड पिन कोड, बाय वेरी लार्ज बैंडविड्थ सिग्नल कॉल्ड स्प्रेडिंग सिग्नल और पिन कोड, ठीक है, here message signal is multiplied by a very large spreading signal called pin code. So here all the users at the same carrier frequency can transmit simultaneously, पटापट दोनों साथ में भेज रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल यूजर ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी कैन ट्रांसमिट ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी साइमल्टेनियसली, ठीक है, मल्टीपल यूजर भेज पा रहे थे पहले भी फ्रीक्वेंसी में एक साथ ना भेज रहे थे, अलग अपने अपने टाइम स्लॉट है भेज रहे थे, अब सारे एक साथ भेज, सारे नहीं, मतलब मान ले तुम प्लॉट की कटिंग भी कर दी, टाइम स्लॉट की कटिंग भी कर दी, अब भाई फिर भी बंदे ज़्यादा पड़ गए, तो भाई दो बंदे बिठा लो एक ही स्लॉट पे, है ना, 11 से 12 में दो बंदे बिठा लो, एक बात कर रहा है इंग्लिश में, एक बात कर रहा है हिंदी में, तो ठीक है भाई, समझने वाले समझ जाएंगे, जिसको हिंदी समझनी वो हिंदी वाले को सुनेगा, जिसने इंग्लिश सुननी वो इंग्लिश वाले को सुनेगा, तो ऐसी कुछ कटाई हो रही है अपलोड की, और जो बाकी इन्फॉर्मेशन है पर सुनाई उसे सब दे रहा होगा, अब सुनाई उसे सब दे रहा है तो वो रिड्यूस वो नॉइस में जाएगा इंग्लिश का डेटा हिंदी वाले के लिए, तो ऐसा कुछ सीन बन रहा है यहाँ पे। हेयर ऑल यूजर यूज सम कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली, all user can here multiple user can use same frequency and transmit simultaneously, ये बात होगी, ईच यूजर हैज इट्स ओन पिन कोड, ठीक है भाई, एंड नो गार्ड बैंड, तो भाई गार्ड बैंड की तो बात ही चली, जब तुम इतना गंदा इंटरफेरेंस करा रहे हो तो भाई खुद ही होना है, तो फिर नॉइस के बेसिस पे भाई नॉइस इम्यूनिटी तगड़ी कर लो अपने नॉइस डिटेक्शन अच्छी कर लो, बस यही है इसमें तो, एंड C1 C2 सारे पिन कोड बांट दिए मैंने यूज़र नू, सारे एक साथ भेज रहे, तो S1 मान लो एक यूज़र है, उसका पिन कोड C1 है और उसका डेटा D1 है, तो कैसे जाएगा ये C1 इंटू D1 की फॉर्म में जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया डेटा को पिन कोड से, ये सब तुम्हें पता है, पर जो लिखने की बात है कि वो ये होगी कि हियर ईच मैसेज सिग्नल इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद द very large code, maybe you can say a large frequency multiplied by a very large bandwidth signal, that's called pin code. बस हेयर, और जो मेन पॉइंट है यहाँ का ये है, हेयर ऑल यूजर्स कैन ट्रांसमिट ऑन द कैन यूज अ पर्टिकुलर कैरियर फ्रीक्वेंसी साइमल्टेनियसली एंड ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली, एक ही फ्रीक्वेंसी को फिर मल्टीपल यूजर्स कैन यूज द सेम फ्रीक्वेंसी एंड ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली, दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एंड साइमल्टेनियस, ठीक है, बस फिर तो तुम्हें दिखाना है कि भाई गार्ड बैंड नहीं है भाई, ऐसे है, ये C1 है, डेटा D1 है, C1 D1 C2 D2 C3 D3, ये सारे प्लस हो गए, जा रहे डेटा ट्रांसमिशन में, अब इट्स बाय मल्टीप्लेक्सिंग द ट्रांसमिटेड सिग्नल ट्रिगर वन सिग्नल, ऐसे ऐसे डेटा जा रहा है कि प्रॉपर्टी ये है कि C1 इंटू C2 0 होना चाहिए, C1 इंटू C1 नंबर ऑफ स्टेशन के बराबर होना चाहिए, बस यही है भाई CDM में, FDM में, TDM में, और फिर फटाफट से बता दिया FDM में सेगमेंटेड ऑन द डिसजॉइंट फ्रीक्वेंसी बैंड, और ईच फ्रीक्वेंसी ईच टर्मिनल यूजर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी फॉर डिफरेंट यूजर एंड एनालॉग सिग्नल, एंड टाइम इज सेगमेंटेड इनटू डिसजॉइंट टाइम डिवीजन में टाइम इज सेगमेंटेड, और इसमें ऑल टर्मिनल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी स्टार्ट पीरियड ऑफ टाइम
एंड डिजिटल इज़ यूज्ड इन GSM, जो भी है मतलब ठीक है, मतलब तुम्हें पता चल गया ना टाइम पे सेगमेंट हो रहा है, सेम फ्रीक्वेंसी कैन स्टार्ट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, टर्मिनल भाई टर्मिनल ऑल टर्मिनल ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी फॉर स्टार्ट सम पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एक बंदे के पास रहेगा। अब डिजिटल इज़ यूज्ड इन GSM, लेटेस्ट CDM आर यूज्ड अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, कोड आर यूज अगर स्पेक्ट्रम, ऑल टर्मिनल आर एक्टिव साइमल्टेनियसली, ये बहुत बड़ी बात है भाई, ऑल टर्मिनल सारे बंदे एक्टिव है साइमल्टेनियसली भाई, कौन लेटेस्ट है ये, ठीक है। बस यही था, अब तक मैक प्रोटोकॉल की बात करेंगे, मैक में ज़्यादा कुछ है नहीं बात करने के लिए, सीधी बात है। हिडन है, दो टाइप की प्रॉब्लम होती है, हिडन टर्मिनल और एक्सपोज टर्मिनल, ये मेन कॉन्सेप्ट है। पर भाई उससे पहले तो मैं थोड़ा सा मैक के बारे में पता होना चाहिए, क्या बताते हैं कि मैक होता क्या है, फिजिकल लेयर होती है, मैक करता क्या है, ये एक रूल होते हैं जो यू नो डिसिप्लिन होता है इनको टू एक्सेस द शेयर चैनल, कैसे एक्सेस करना है वो मैक बतावे, एंड व्हेन यू मल्टीपल यूजर वांट टू एक्सेस द चैनल, एंड इसमें मैक कैसे बताता है कि भाई क्या रूल लगाता है, ये कुछ ऐसे रूल लगाता है वो यहाँ पर बताया नहीं है, पर रूल इस हिसाब से लगता है कि भाई चैनल यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो तो मैक्सिमाइज द चैनल यूटिलाइजेशन, मिनिमाइज द एवरेज लेटेंसी, लेटेंसी सबसे कम होनी चाहिए भाई की, मतलब टाइम में कम लगना चाहिए ट्रांसमिशन का, और इंश्योर डिसिप्लिन शेयर्ड चैनल यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम चैनल एलोकेशन फेयर होना चाहिए भाई, कुछ भी ऐसा ऊंच नीचे नहीं होनी चाहिए, सारे सबको बराबर चैनल फेयर मिलना चाहिए, ठीक है। एंड कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग सेवरल टाइप ऑफ ट्रैफिक, ठीक है, सेवरल टाइप ऑफ ट्रैफिक भी जा सके भाई बंदा, मतलब SMS मैसेज वॉइस वीडियो मल्टीमीडिया सब कुछ जा सके, ठीक है। हाई लो वेरिएबल डिले ट्रैफिक, ठीक, अच्छा जी सॉरी, तो ट्रैफिक से मतलब मेरे ख्याल से यहाँ पे ट्रैफिक का वो नहीं था कि डेटा जो तुम भेज रहे हो, ट्रैफिक का मतलब है कि द हाई ट्रैफिक लो ट्रैफिक की ज़्यादा है कम है, ठीक है भाई बस यही था। रिजल्ट इन नेचुरल पॉपुलर मैक प्रोटोकॉल, ये इश्यूज़ की बात करते हैं, मेन इसमें इशू ही है मेरे ख्याल से, हिडन टर्मिनल एक्सपोज टर्मिनल। हिडन टर्मिनल का ऐसा डायग्राम होता है कि A B को भेज रहा है, उसको ये नहीं दिख रहा कि B B C को भेज रहा है, तो A B B को भेज रहा है, B B C को भेज रहा है, ना A को पता कि C भेज रहा है, ना C को पता कि A भेज रहा है, तो ये ऐसा होता है हिडन टर्मिनल कि A ने B को भेजना स्टार्ट करा, पर A मेरा बस B से कनेक्टेड है, A C से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ए को दिख रहा है बी खाली और बी को दिख रहा है सी खाली। अब देखो बड़े गोले यहाँ पे दो हैं, हिडन टर्मिनल में बड़े गोले दो हैं, एक्सपोज टर्मिनल में बड़े गोले तीन हैं, ठीक है। एक्सपोज टर्मिनल में ऐसे लगता है कि भाई ए को लगता है कि सी बी को भेज रहा है और सी को लगता है कि भाई ए बी को भेज रहा है, तो आई थिंक हिडन टर्मिनल में ये दिक्कत होती है पहचानने की कि भाई ये बी किसके अंदर है, ठीक है, बी किसके अंदर है, ए के अंदर है या सी के अंदर है, तो वो बोलते हैं कि ना बी ए के अंदर है ना बी सी के अंदर है, और एक्सपोज टर्मिनल में दोनों का ऐसा लगता है कि बी ए के अंदर भी है और सी के अंदर भी है, पता नहीं, मतलब उसके लिए बी का गोला बना दिया और दोनों को कनेक्ट करा दिया, ठीक है। अब बी का एक गोला है और सी का एक गोला है, तो सी तो बी को भेजेगा ही भेजेगा, क्योंकि इसको अब ए जो मेरा पड़ा है वो दूसरे गोले में पड़ा है, ठीक है, और पर वो गोला कनेक्टेड नहीं है, ए का गोला ना किसी भी तरह से बी के गोले से है। A is exposed to B, तो मतलब B को दिख रहा है कि A भेज रहा है when B is transmitting, hence अच्छा B जिस गोले में पड़ा है उसको गोले में A भी है, ठीक है, उस गोले में C भी है, तो B को दिख रहा है कि A is exposed to B, B को A दिख पा रहा है। अभी पिछले वाले केस में B को A दिख ही नहीं रहा था, B अपना मस्त चल रहा था C के साथ, C से साथ वो चला रहा था अपनी बातें, ठीक है, वो कर रहा था C के साथ बातें, और B को लग ही नहीं रहा था कि A भी कुछ दिक्कत कर रहा है, ठीक है, A भी मेरे को भेज सकता है, क्यों नहीं दिख रहा था, क्योंकि भाई A दूर था ना, मतलब ऐसे वाले सीन है, पर A को लग रहा है कि B खाली है, क्योंकि ऑब्वियसली ए को ये देखने की जरूरत थोड़ा है कि बी खाली है नहीं, ए को ये देखने की जरूरत है कि भाई मैं खाली हूँ मैं भेज देता हूँ, ठीक है, जिस गोले में मैं पढ़ा हूँ उसमें हो सकता है। अब इस गोले में हो ही नहीं सकता कि बी इसको ए ने देख लिया बी को कि बी तो कर रहा है उसके साथ ट्रांसमिट, ठीक है, पता नहीं यार, मतलब एक्सपोज का मतलब तो मेरे को यही लग रहा है कि दोनों एक्सपोज हैं, कि ए इज एक्सपोज टू बी, तो ए को पता है कि बी ट्रांसमिट कर रहा है, बी इज ट्रांसमिटिंग, हैंस ए कैन नॉट ट्रांसमिट टू एनी अदर नोड, लाइक इट फील्स लाइक इट्स इनकवरिंग द एरिया ऑफ बी विच इज ट्रांसमिटिंग।
हेंस अच्छा बी ए इज एक्सपोज टू बी, तो ए को बी दिख पा रहा है, तो व्हेन बी इज ट्रांसमिटिंग हेंस एक्सपोज टू बी, ए और बी एक दूसरे को देख सकते हैं, ठीक है। तो ए ने देख लिया कि बी ट्रांसमिशन कर रहा है और इन्हें उसको लग रहा होगा कि भाई ट्रांसमिशन मेरे इधर ही चल रही है, ठीक है, तो ए नहीं भेजेगा रेडी। तो सी की बात होगी तो अभी ट्रांसमिट कर रहे हैं, सी को लग रहा है कि बी मेरे को ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, पर ए को यहाँ पे क्यों नहीं पता कि बी किसी को ट्रांसमिट कर रहा है, क्योंकि उसके गोले में ही नहीं है ना, बी के गोले से वो कनेक्टेड ही नहीं है जिस गोले में बी है। तो जब हाँ सी ए से हम ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं तो एक को लगेगा कि भाई बी को तो बी को नहीं यहाँ पे तो ट्रांसमिशन भी नहीं हो रही है कोई, बी टू एक ही ठीक है यार। इसको थोड़ा ऐसा बताओ ना मैं सिनेरियो समझा के, तो ये अंदर के गोले और बाहर के गोले थोड़ा अलग मान लो, ठीक है। तो ये अगर ये गोला दो नहीं होते एक ही गोला होता है ना तो बहुत ही सिंपल सही चीज़ हो जाती कि मतलब फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती, पर अभी दिक्कत ये है कि गोले दो हैं। तो जो बड़े वाला गोला है उसको लगता है कि भाई ये एरिया है जो मैं देख सकता हूँ, और जो छोटे वाला गोला है वो एक्चुअली में वो एरिया है जहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है, और बड़े एरिया में बस उसका इफेक्ट दिख रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे जो बी और सी साथ में, ठीक है, अब बी को ये दिख रहा है जैसे सी बी को भेज रहा है, ठीक है, तो बी को पता है सी बी को भेज रहा है, सी को पता है सी बी को भेज रहा है, पर ए को क्यों नहीं पता, क्योंकि जो छोटा ए का गोला है ना उसकी इन्फॉर्मेशन ए के पास है, छोटा ए का गोला। अब बड़ा गोला मतलब मान लो बस कनेक्टिविटी के लिए यूज़ हो रहा है कि भाई यहाँ तक तुम कनेक्ट कर सकते हो चाहो तो, अब कनेक्शन करोगे या नहीं करोगे वो छोटे गोले पे डिपेंड करता है। अगर छोटा गोला बिल्कुल खाली पड़ा है तो उसको लगेगा कि भाई कि छोटे गोले को दिख नहीं रहा कि बी पे ट्रांजैक्शन हो रही है, बी के छोटे गोले पे ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है, या बी के बड़े गोले पे, बड़े गोला वो है जहाँ पे उसका इफेक्ट दिख रहा है, बड़े गोले इस बी टू सी के पूरे बड़े गोले को पता है कि ट्रांजैक्शन हो रही है, तो ए को नहीं पता क्योंकि ए छोटे गोले के अंदर है, तो ए भी बी को भेजना शुरू करेगा, वो देखेगा कि मैं क्या मैं भेज सकता हूँ, हाँ मैं भेज सकता हूँ, क्योंकि दोनों बड़े गोले आपस में कनेक्टेड हैं। पर ए ये नहीं देख पाएगा कि भाई बी पे ऑलरेडी ट्रांजैक्शन हो रही है, तो ए भेजना स्टार्ट करेगा, तो हिडन टर्मिनल की प्रॉब्लम हो गई कि भाई ए भी भेज पा रहा है, तो दोनों मतलब ओवरलैप कर जाएंगे कि सी तो भेज ही रहा था, सी तो अपनी जगह सही था, सी पूरा बी को देख सकता है, नहीं सी भी बी को नहीं देख सकता, बात ये है। अब मान लो ए से बी में ट्रांजिशन चल रही है, उसको लग रहा है हो सकती है, अब सी को क्या लग रहा है कि भाई अब यहाँ पे ए बी सी कैसे कनेक्टेड है, ए जो है ना वो दूसरे वाले के गोले में भी कनेक्टेड है, तो जब बी और सी ट्रांसमिट कर रहे होंगे तो इन दोनों बड़े गोलों को पता है कि बी और सी ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो जब बी और सी ट्रांसमिट कर रहे हैं तो जिस गोले के बड़े वाले गोले के अंदर बी और सी हैं तो उधर उसको पता है, ठीक है, ए को नहीं पता, पर उस बड़े गोले को भी पता है शायद या नहीं पता, फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे किन गोलों को पता है, अगर मान लो बी ट्रांसमिट कर रहा है सी के साथ, तो इस गोले को पता है और इस गोले को भी पता है, और ए उस गोले के साथ ओवरलैप कर रहा है, बी के बड़े गोले के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो ए को लगेगा कि भाई मेरे छोटे गोले के अंदर अगर ट्रांसमिशन हो रही है मतलब मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ, तो वो किसी और को ट्रांसमिट नहीं करेगा। ये एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम, छोटे गोले बड़े गोले की अगर बात समझ गए तो हो जाएगा। एक और बात बता देता हूँ जो मेरे को समझ आया कि भाई जो छोटे वाला गोला है उसमें एक्चुअली काम हो रहा है, ठीक है, ट्रांसमिशन हो पा रही है नहीं वो पता लगाएगा, बट जो बड़े वाला गोला है ना वो एक्चुअली मतलब जब ट्रांसमिशन हो रही है तो वो पूरा कवर हो रहा है, उस पर सारे चेंजेस शो हो रहे हैं, ठीक है, बड़े वाला गोला या तो कनेक्टिविटी में हेल्प कर रहा है या तो उस पर सारे चेंजेस शो हो रहे हैं। और तो जैसे कि पहले वाला केस देखते हैं, बी टू सी अगर ट्रांसमिशन हो रहा है तो पहली बात ये ट्रांसमिशन हो सकता है क्योंकि ये दोनों एक बड़े गोले के अंदर हैं, तो हो जाएगा ट्रांसमिशन। अब जब ट्रांसमिशन होगा तो बी को पता है सी ट्रांसमिट कर रहा है, सी को पता है बी ट्रांसमिट कर रहा है, और ये जो पूरा बड़े वाला गोला है ना जिसके अंदर बी और सी हैं
उस पूरे गोले को पता है कि ये बी और सी ट्रांसमिट कर रहे हैं, पर जो ए है वो बी और सी वाले गोले के बीच में नहीं है, ठीक है। तो उस गोले ए जिस गोले में है शायद उस गोले को पता है, नहीं वो नहीं पता, पर ए को ये नहीं पता कि बी और सी ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ए उस गोले के अंदर नहीं है जिसके अंदर बी और सी दोनों हैं, ठीक है, या तो बी हो या तो सी हो, तो ठीक है, तो फिर ए भी भेजना शुरू कर देगा, बस हो गई दिक्कत हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम की। अब यहाँ पे बी और सी मान लो कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, मान लो कर रहे हैं, तो सी को पता है कि बी कर रहा है, सी को पता है कि मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, बी को पता है कि वो कम्युनिकेट कर रहा है, सी का जो बड़े वाला गोला है उसको भी पता है कि सी कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, तो सी कहीं और नहीं भेजेगा, ठीक है। अब बी का जो बड़े वाला गोला है उस बड़े गोले को पूरे गोले को पता है कि बी और सी में गोले में वो हो रहा है, बी और सी में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो बी के बड़े गोले को पता चल गया। तो जब बी के बड़े गोले को पता चला ना, एक कुछ पार्ट बी के बड़े गोले के साथ ओवरलैपिंग था, तो ए के उस पार्ट को पता लग गया कि भाई यहाँ पर ट्रांसमिशन हो रहा है, क्योंकि इफेक्ट शो हो गए बड़े वाले गोले के ऊपर। अब ए को लगेगा कि भाई यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है तो मैं ही कर रहा हूँगा, है ना, तो वही बात है, ए किसी और को नहीं भेजेगा, बल्कि जबकि ए खाली पड़ा है, जस्ट बिकॉज वो बी के बड़े वाले गोले के अंदर है तो वो गड़बड़ हो गई। उस केस में बड़े वाले गोले के अंदर नहीं था और बी और सी छोटे एक ही गोले के अंदर थे, तो वो वाली बात हो गई थी। तो बेस्ट केस क्या है, तुम्हें अगर दोनों प्रॉब्लम केसेस समझ आ गए तो केस क्या है कि जब ए टू बी हो, ए बी सी तीनों एक के अंदर हो, तो मेरे ख्याल से वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि मान लो अगर बी सी को ट्रांसमिट कर रहा है तो पूरे गोले को पता है, ए को भी पता है, ठीक है, नहीं फिर भी ए किसी और को नहीं कर पाएगा, तो वो भी गलत है। तो मतलब बेस्ट ये है कि ए थोड़ा और परे को हो, है ना, और परे को हो, ए का गोला थोड़ा और परे को हो और सी का गोला भी थोड़ा और परे को हो। तो जब बी और सी ट्रांसमिट कर रहे हैं तो अब बी और सी को पता है, बी और सी के बड़े वाले गोले को पता है कि हम दोनों ट्रांसमिट कर रहे हैं, पर उससे कुछ ए पे इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ए का कोई भी पार्ट बी के बड़े गोले से ओवरलैप नहीं करेगा उस टाइम पे। अगर बी थोड़ा और लेफ्ट की तरफ होता, सी थोड़ा राइट की तरफ होता, तो सिमिलरली पर ए और बी तो कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का बड़े गोले आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, तो जब वो कनेक्ट करना चाहेंगे वो कर लेंगे, पर जब वो कनेक्ट करेंगे तो ए और बी के गोले लाल हो जाएंगे, और सी उस गोले के अंदर अगर होगा तो दिक्कत है कि उसको लगेगा कि मैं कर रहा हूँ पर वो कर नहीं रहा होगा, ए और बी कर रहे हैं। पर अगर सी उस गोले के बाहर हुआ, बी के गोले के बाहर हुआ, जैसा इस केस में सी की बाउंड्री बी की बाउंड्री को टच कर रही, तो अगर वो सी थोड़ा सा राइट में होता तो दिक्कत नहीं होती। तो वो मेरे ख्याल से बेस्ट केस है कि जब तीन बड़े गोले हैं, तीन छोटे गोले हैं, तीनों बड़े गोले आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, पर कोई सा भी छोटा, जैसे बी का छोटा गोला बिल्कुल बी के सेंटर पे है, बी के बड़े गोले के सेंटर पे, ए का छोटा गोला ए के छोटे गोले के सेंटर पे, और ए का छोटा गोला बी के बड़े गोले के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा, और जैसे इस केस में कर रहा है तो ये गलत है, पर नहीं करना चाहिए, है ना। और सी का जो छोटा गोला है वो बी के बड़े गोले के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा, तो वो सबसे अच्छा केस हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक्सपोज टर्मिनल पता चल गया, हिडन टर्मिनल पता चल गया, रोबस्टनेस नेचर मतलब ऑब्जेक्टिव क्या करना चाह रहे हैं हम मैक से। मैक होता क्या है कि एक रूल्स लगाना, एक डिसिप्लिन लगाना, ताकि सारे बंदे शेयर चैनल को एक्सेस कर पाएँ, और किस हिसाब से हमें एक्सेस करना है ताकि क्या हो सके, कुछ ऑब्जेक्टिव मीट हो सके, वो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मिनिमम लेटेंसी, लेटेंसी मिनिमाइज होनी चाहिए, एवरेज लेटेंसी टाइम कम लगना चाहिए, और डिसिप्लिन होना चाहिए, एक यूटिलाइज मैक्सिमम होना चाहिए, और क्या यार, एफिशिएंसी एलोकेशन थोड़ा फेयर होना चाहिए, और क्या भी बोला, सपोर्टिंग मल्टी डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा सपोर्ट होना चाहिए, रोबस्टनेस नेचर में होनी चाहिए, फास्ट होना चाहिए, लेटेंसी कम होनी चाहिए, पॉपुलर मैक इन्होंने बता दिया, इशू बता दिया, तो बस यही है मैक में, और कुछ नहीं खास है। चलो मैं एक बार तुम्हें बता देता हूँ मैथ में क्या कराया था भाई, सेम ही था, आई थिंक सेम था। मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल बता दिया, और नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम होता है यहाँ पे, डेटा लिंक लेयर नहीं, नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर में कंजेशन प्रॉब्लम होती है, डेटा ट्रांसफर बिटवीन P2P, वायरलेस मोबाइल कॉलिजन कंजेशन, OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल के बारे में थोड़ा बताया होगा, उससे कनेक्ट करके बताया होगा कि भाई ये मैक लेयर मतलब एक लेयर का पार्ट है, नहीं कौन सी लेयर में आता है पता नहीं, नेटवर्क लेयर में, ट्रांसपोर्ट लेयर में, ठीक है। अब एक करता क्या, इन्फोर्सेस डिसिप्लिन, मैक डेटा लिंक लेयर का पार्ट है, एक दो LLC होता है, एक लिमिटर ये होता है, और हिडन टर्मिनल, एक्सपोज टर्मिनल, यही इसी पे बात हुई थी, बस ऑब्जेक्टिव पे बातें हुई थी कि क्या करना चाह रहे हैं, वो मैंने बात कर दी भाई, लेटेंसी कम, यूटिलाइजेशन ज़्यादा, फेयर होना चाहिए, सपोर्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा होना चाहिए, रोबस्टनेस इन नेचर होनी चाहिए एक, बस, और उसके बाद कोई पॉइंट ही नहीं है एक्चुअली, वो बस पॉपुलर मैक प्रोटोकॉल 802.11, तो ये कॉलिजन में सर, और एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ होगा, जो कॉलिजन होगा तो हटाते कैसे वो बता रखा है।
तो स्प्रेड बस ख़त्म कर दिया, स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक पे आ गए जो कि इस पीडीएफ में नहीं है, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं। पर स्पेक्ट्रम टेक्निक के बारे में बता देता हूँ, ये भी थोड़ा सा उसी की तरह है जो अभी हमने वो देखा ना 4 डिवीजन, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं और मतलब फैला देते हैं चैनल को, है ना, मतलब नैरो बैंड को मतलब फैला देते हैं और वाइड बैंड बना देते हैं, फ्रीक्वेंसी करते हैं, फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं, फिर उसको वापस से सही करते हैं रिसीवर पर ले जाके। अब इसमें 2 टाइप की हॉपिंग होती है, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग, एक होती है फास्ट हॉपिंग सीक्वेंस, एक होता है डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम। तो ऐसी कुछ है भाई, एक में हॉपिंग कराते हैं, एक में डायरेक्ट सीक्वेंसी स्प्रेड स्पेक्ट्रम, शिपिंग कोड होता है डीएसएस में, और वो क्या काम करता है, क्यों कर रहे हैं ये सब। स्प्रेडिंग स्पेक्ट्रम मतलब स्पेक्ट्रम को स्प्रेड करना और फिर वापस से डी स्प्रेड करना, मतलब पहले फैलाना फिर समेटना, सेंटर से जब फैला के भेजेंगे उसमें ट्रांसमिशन पे बेस बैंड के ऊपर, और कैसे फैलाने के तरीके 2 अलग अलग हैं, एफएचएसएस फास्ट हॉपिंग, दूसरा है डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम जिसमें चिपिंग कोड यूज़ होता है। फास्ट हॉपिंग में यही है कि भाई हॉप करता रहता है कि भाई इस फ्रीक्वेंसी F1 से F2 पे चला गया, फिर F2 से F1 पे आ गया, मतलब ये केवल ऐसा नहीं है, मतलब F1 F2 का मतलब है कि पहले मान लो 5 फ्रीक्वेंसी से सीधा 5000 पे चला गया तो बहुत बड़ी जंप मार ली इसने, फिर हो सकता है कि छोटी जंप मारे, है ना, ऐसी बड़ी छोटी जंप ऐसे मार मार के 5000 से 2000 पे आ गया, फिर ऐसे जंप मार के, मतलब यही है जो है। उसके बाद पैकेट स्विचिंग सर्किट स्विचिंग के बारे में बात हुई, डेटा साइज और बैंडविड्थ के बाद बात हुई, प्रोपगेशन डिले के बारे में बात हुई, एफिशिएंसी थ्रूपुट के बारे में बात हुई। ये सारे पैकेट और सर्किट स्विचिंग की मद्देनजर रखते हुए मेन तो स्विचिंग के बारे में बहुत बात हो रही थी इसमें। और फिर एफिशिएंसी स्विचिंग के बारे में क्या क्या बातें हुई कि मतलब प्रोपगेशन डिले निकाला स्विचिंग के केस में, और ट्रांसमिशन टाइम किसका कम ज़्यादा है, थ्रूपुट किसकी ज़्यादा है, डेटा साइज क्या है, मैसेज स्विचिंग के बारे में बात है, पैकेट स्विचिंग के बारे में बात है, डेटाग्राम वर्चुअल होता है, ठीक है। पैकेट स्विचिंग का डिफरेंस देखा, फिर आया भाई सेलुलर नेटवर्क पे। सेलुलर नेटवर्क तुम्हें पता ही है, लास्ट क्लास तुमने ठीक से ले ली थी, हेक्सागोनल सेल होते हैं, क्यों होते हैं, एडवांटेजेस क्या है उसकी, और एफिशिएंसी है, लो पावर, चैनल इंटरफेस कम होता है, और फिर बेस स्टेशन क्या होता है, एक सेल क्या होता है, सेल कैसे, सेल का साइज किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ यूजर पे, और एडवांस टेक्नोलॉजी कितनी हो जा रही है, और फिर की टर्म्स, क्योंकि देखो भाई जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी आज की डेट में भाई एक टावर बहुत कुछ संभाल रहा, तो सेल का साइज तुम्हारा बहुत बड़ा हो गया, एक टावर भाई काफ़ी है बड़े सेल के लिए, पूरे पालन के लिए एक टावर काफ़ी है। पहले सेल का साइज कम होता था, छोटे छोटे भाई यूनिवर्सल में एक टावर लगाया भाई, इधर इधर के भी में अलग टावर लगाया, तो भाई यस सीन होते थे, ठीक है। अब की टर्म्स क्या है, सेल में थोड़ा डायमीटर रेडियस वाली बात है, मेन बात है यहाँ पे बेस स्टेशन क्या होगा, एमएससी क्या होगा, मोबाइल सर्विस स्टेशन होगा, पता नहीं क्या होगा, है ना। तो मोबाइल स्विचिंग सेंटर हो गए, और इसमें साउथ स्विचिंग रूटिंग कैसे हो रही है भाई, कैसे बंदा कैसे फ़ोन कॉल लग रही है, HLR VLR से कैसे जा रहा है, मतलब हमारा रिकॉर्ड हमारे जो सेल के HLR में स्टेव है, होम लोकेशन रजिस्टर में, और बाकी पूरे देश का और बाकी सारे बंदों का रिकॉर्ड हमारे पालम के क्षेत्र में कैसे स्टोर है, वो VLR में स्टोर है। पर अगर मैं बात करूँ मेरा डेटा बैंगलोर में कैसे स्टोर है, वो VLR में स्टोर है, और बैंगलोर वाले बंदे का डेटा वहाँ पे HLR में स्टोर है, तो हम अपने HLR से दूसरे बंदे के HLR पे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम दूसरे बंदे को कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम अपना फाइंड थोड़ा ना कर रहे हैं, तो वो वाली बात है। चलो अब रिसोर्स फ्रीक्वेंसी यूज़ करना होता है, जैसे कि ये मान लो जैसे कि हेक्सागोनल है तो बस इमीडिएट एडजेसेंट सेल पे यूज़ नहीं कर सकते, बीच में F1 का सेल बना दिया तो इसकी तरफ 6 जो सेल लगेंगे उसमें से किसी कोई साइज F1 नहीं हो सकता, F2 से लेकर F7 तक घेर दो, ठीक है। पर उसके बाद जो अगला बंदा आएगा जो इसका डायरेक्ट एडजेसेंट नहीं है पर एडजेसेंट का एडजेसेंट है, वहाँ पे तुम F1 यूज़ कर सकते हो, बात करो तो। फ्रीक्वेंसी यूज़ फैक्टर क्या होता है, इससे डिस्टेंस के बाद तुम रीयूज़ कर सकते हो, ठीक है, एडजस्टेंट पे यूज़ नहीं कर सकते, उसके अगले बंदे पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स वी आर चेंजिंग बेस स्टेशन, वो हमारा हैंड ऑफ होता है कि भाई दिल्ली से गाजियाबाद जाने में या फिर दिल्ली से तुम्हें आगरा जाने में कितने बेस स्टेशन लगे, वो तुम्हारा हैंड ऑफ है, ठीक है। अब ये इंटर सेलुलर भी हो सकता है, एक सेल के अंदर भी तुम्हें बेस स्टेशन लग रहे हैं, वैसे ये होता नहीं है जनरली, मतलब इंटर मतलब हाँ अगले मतलब दिल्ली से आगरा वाला एरिया, पर अगर इंट्रा सेलुलर मतलब कि पालम के अंदर ही तुम कम्युनिकेट कर रहे हो तो भी तुम्हें बेस स्टेशन लगेंगे कुछ, वैसे वाली बात है। आई थिंक एक ही लगेगा, है ना। हैंड ऑफ की बात हुई यहाँ पे, बेस स्टेशन लो हाई सॉफ्ट हैंड ऑफ हार्ड हैंड ऑफ की बात हुई, बस इतनी बातें हुई थी। और उसके बाद जो अगली चीज़ें आती हैं वो आती हैं हमारी GSM, दिखा देता हूँ मैं तुम्हें सेलुलर नेटवर्क के बाद क्या चीज़ें आती हैं हमारी, ये चीज़ें आती हैं हमारी, यहाँ पे अभी नोट्स प्रोवाइड हुए हैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो GSM की बातें आती हैं, GSM फंडामेंटल, सेलुलर नेटवर्क की बात कर ली हमने, स्विचिंग की हमने हल्की सी बात करी है, थोड़ा सा देखने लायक है स्विचिंग में अभी भी। और GSM की अगर मैं बात में बताऊँ थोड़ी सी, तो इसमें तुम्हारा है भाई सारी नई चीज़ें हैं बिल्कुल, इसमें क्लास में बात हो ही नहीं है। GSM आर्किटेक्चर में कोई बात नहीं, किसी में कुछ बात नहीं हुई है, MSC HLR VLR BTS बेस स्टेशन है शायद, पता नहीं,
ज़्यादा बातें नहीं हुई हैं इसमें, इंटरफेस क्या है, EMI क्या है, ठीक है, ये सब बातें करनी पड़ेंगी तुमसे, ठीक है। सेलुलर की बातें मैं नहीं करूँगा क्योंकि सेलुलर की बातें मैंने देख ली। एक बार हल्का सा फिर भी दिखा देता हूँ। देखो, पहले बात तो सेलुलर नेटवर्क के एडवांटेजेस क्या हैं। सेल हेक्सागोनल क्यों रखा, ठीक है। फीचर्स और डिटरमाइनिंग सेल साइज, ठीक है। बेस स्टेशन क्या होता है, ईस्टेल का अपना एक बेस स्टेशन होता है, BSC बेस स्टेशन कंट्रोलर होता है, रिएक्टर्स और राउटर। और फिर एक MSC क्या होता है, HLR VLR क्या होता है, नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंदर आता है भाई। ये डेटा कैसे कैसे जा रहा है, ये अपना डेटा है और ये दूसरे बंदे का डेटा है, जैसे मोबाइल नंबर, जैसे दिल्ली का है, वो गाजियाबाद आगरा का है, वो बैंगलोर का है, ऐसे, ठीक है। PSTN होता है वो पब्लिक स्टैंडर्ड टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है। सेल का स्टेट है, हेक्सागोनल शेप होता है हेल्थ सेल का। और इसमें ओवरलैपिंग के बारे में बात हुई है कि हेक्सागोनल ही क्यों होता है। फ्रीक्वेंसी यूज़ का फैक्टर इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रीयूज़, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी और डायनेमिक फ्रीक्वेंसी रीयूज़, ये बात तो नहीं हुई क्लास के अंदर, इसको देखना पड़ेगा। काफ़ी पॉइंट लगा रखे भाई इसमें। डायनेमिक फ्रीक्वेंसी यूज़, कैलकुलेशन ऑफ रीयूज़ फैक्टर, या फिक्स फ्रीक्वेंसी यूज़ मतलब कि इतने टाइम के बाद तुम्हें रीयूज़ करना है। नो प्रीडिस सेट ऑफ चैनल्स आर प्रोवाइडेड, ठीक है। और ये है हैंड ऑफ के बारे में बात हुई है कि कितना एबिलिटी टू ट्रांसफर मोबाइल कॉल फ्रॉम वन बेस स्टेशन टू अदर बेस स्टेशन, ठीक है। एबिलिटी या फिर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितने लगे, मेरे ख्याल से नंबर ऑफ तुम्हें सेल कितने लगे, वही हैंड ऑफ है। ओनली वन चैनल इज चेंज्ड, लिख तो रखा है इसने। हार्ड हैंड ऑफ, सॉफ्ट हैंड ऑफ, बस यही है। थोड़ा डेप्थ ज़्यादा है। डेप्थ कहाँ पे ज़्यादा हुई, ऑब्वियसली हेक्सागोनल सेल्स के बारे में जानने में डेप्थ थोड़ी ज़्यादा ही, मतलब इतना मैं कह सकता हूँ। हैंड ऑफ के बारे में डेप्थ ज़्यादा नहीं है, नहीं है, क्योंकि हमने हार्ड और हैंड ऑफ का नाम लिया है बस, हार्ड और सॉफ्ट का हमें एक्चुअली अभी कुछ नहीं पता। इसके बारे में देखना है, इसको देखा नहीं है अभी कि हार्ड हैंड ऑफ सॉफ्ट दो पन्ने इसने क्यों भरे हैं, उसका रीज़न पता करना पड़ेगा, ठीक है। रीज़न फॉर हैंड ऑफ भी हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता है, हमें बस ये पता है हैंड ऑफ की कितने टाइम लग रहा है, तो हमें शायद ये फ़ोटो के बारे में पता है, हमें रीज़न फॉर हैंड ऑफ नहीं पता। नॉन CDM में CDM में, ठीक है। और हमें ये पता है डी मिनिमम इतना होता है, पर कैलकुलेशन करनी शायद हमें आती है कि फ्रीक्वेंसी रीयूज़ फैक्टर की। इसमें कुछ कैलकुलेशन करी नहीं है इसने, पहले सारी टर्म बता दी फिर आंसर लिख दिया उस टर्म के बेसिस पे। पर फिक्स फ्रीक्वेंसी और डायनेमिक फ्रीक्वेंसी नाम सुना सुना लग रहा है, कुछ इस पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या नहीं, मतलब कुछ अनुमान लगा पा रहे हैं कि here a set of channels are allocated to access channel. If cell is there, predefined channel is used, no new service call can be placed. Here the call can borrow channel from other call, which is called frequency borrowing. कि भाई ये बोरो कर लेगा, पहले जो यूज़ हुई थी। डायनेमिक फ्रीक्वेंसी, नो प्रीडिफाइंड सेट ऑफ चैनल्स आर प्रोवाइडेड हेयर, इफ देयर इज अ सेल फ्रीक्वेंसी इट विल रिक्वेस्ट फॉर फ्रीक्वेंसी बैंड फॉर MSC टू डिमांड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बैंड आर रिक्वेस्टेड फ्रॉम MSC। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से सेल टू सेल रिक्वेस्ट होती है कि सेल 1 ने सेल 2 से रिक्वेस्ट कर ली भाई फ्रीक्वेंसी के लिए, उसने दे दी। ऑब्वियसली 1 2 को नहीं दे सकते क्योंकि दोनों आपस में एडजेसेंट हैं, पर 1 ने मान लो 5 भी को नहीं, मतलब 1 ने 8 को दे दी, 8 को दे सके आई गेस, ठीक है। तो 8 को, 9 को, 10 को, ठीक है। 1 ने 10 को दे दी और 10 वाले बंदे ने 1 से मांगा, उसने दे दी। अब दूसरा बंदा कह रहा है कि भाई 10 ने 1 से नहीं मांगा, 10 ने मांगा MSC से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आर रिक्वायर्ड रिक्वेस्टेड फ्रॉम MSC and demanded from MSC are allocated to frequency या बस यही है। Set of channels are allocated there are and use, no new channel can be placed, no new service can be placed, ठीक है। प्रीडिफाइंड चैनल है जो इतने यूज़ होंगे, हर कॉल कैन बी बोरो चैनल, बोरो कर लेगा इससे बगल वाले बंदे से, यूज़ कर लेगा, MSC से सीधा मांगेगा, है ना। तो ये है बात। फ्रीक्वेंसी रीयूज़ करना क्यों ज़रूरी है ये हमें पता ही है। इट इनेबल्स टू एक्सपैंड टोटल स्पेक्ट्रम कैपेसिटी, सिस्टम कैपेसिटी, क्योंकि भाई कम फ्रीक्वेंसी में ही हम बंदे मैनेज कर पा रहे हैं तो टोटल सिस्टम कैपेसिटी को कम कर देगा। इट इनेबल्स टू एक्सपैंड टोटल सिस्टम कैपेसिटी एंड returns to need to employ high power antenna requesting a frequency again and again। हेक्सागन, एरिया ऑफ हेक्सागन, ठीक है। overlapping of cell, gap between cell shape, network architecture, CVLR, HLR, VLR, ठीक है। मोबाइल स्विचिंग सेंटर,
इसके बारे में हमें हल्का सा पता है, बीएससी के बारे में मतलब हमें हल्का हल्का सबके बारे में पता है, मतलब एमएस VHLR VLR होम लोकेशन डेटाबेस, ठीक है, मतलब डेप्थ में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है बेस स्टेशन भाई। अब इससे पहले की जो चीज़ें हैं कि सेल की डेफिनेशन वगैरह या फिर ये सब तो देखना ही पड़ेगा हमें। सेलुलर नेटवर्क की डेफिनेशन तक नहीं पता हमें, बस हमें थोड़ा थोड़ा पता है कि क्या है हमारा सेल, क्या है हेक्सागन होता है, क्यों होता है, साइज सबसे अच्छा होता है हेक्सागन में, मतलब एफिशिएंसी सबसे अच्छी होती है। देन बीएससी क्या होता है, एमएससी क्या होता है, देन एचएलआर क्या होता है, वीएलआर क्या होता है, देन फ्रीक्वेंसी रीयूज क्या होता है, क्यों करते हैं, हैंड ऑफ क्या होता है, बस ये ऊपर ऊपर से चीज़ें पता है। अगर हम सीधा कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो मेरे को सेलुलर नेटवर्क में ये पता है सेल क्या होता है, ठीक है। सेल इज़ अ बेसिक जियोग्राफिक यूनिट ऑफ सेलुलर सिस्टम, बस इतनी, और एक ही डेफिनेशन पता है, इसकी ज़्यादा नहीं पता। कवरेज एरिया डिवाइडेड इनटू ईच सेल, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, ये भी लिख सकते हैं। दीज सेल्स आर स्टेशन, ये नहीं पता तो ये भी नया चीज़ है। मतलब पता तो है पर ये चीज़ मतलब डायरेक्टली हम बोलते नहीं है ना कि सेल के विषय में हमें बस हाँ कि भाई पालम है एक सेल है, बस यही है, बस हेक्सागोनल शेप का होगा, बस एक बेस स्टेशन होगा इसके अंदर, बस ये स्टेशन है। और स्टेशन ट्रांसमिटिंग स्मॉल जियोग्राफिक लोकेशन बेस सेल इज जोन एडजेसेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, एडजेसेंट सेल में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, अवॉइड इंटरफेरेंस। तो मतलब ये चीज़ हमें पता है पर इस सेल की डेफिनेशन में नहीं लिखेंगे हम, तो इसको फिट कहाँ करेंगे, देख लेंगे कि मतलब हाँ जब एडजेसेंट सेल की फ्रीक्वेंसी रीयूज वाली बात आएगी तब बोल सकूँ कि भाई ये बगड़ वाली फ्रीक्वेंसी ना उठा के दे रहा, ये दूसरे से मांगनी फिरेगी, ठीक है। तो ये बड़ी बात है। बेस स्टेशन क्या होगा कि इट प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द मोबाइल ईच सेल हैज बेस स्टेशन हो, बस हमें ये पता है बेस स्टेशन कुछ होवे, हर सेल के अंदर होवे और हर सेल के अंदर एक होवे। अब ये ना पता कि होवे क्या बेस स्टेशन, इट प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द मोबाइल फ़ोन, पता नहीं कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। इस सेल के अंदर बेस्ड फ़ोन एंड ट्रांसफर ट्रैफिक टू एमएससी ऑल्सो। तो ठीक है भाई, बेस स्टेशन नई चीज़ है, थोड़ी सी शायद ये पता थी पर ये सिग्निफिकेंटली नहीं आती है, पता चल गया बेस स्टेशन हमारा डेटा डायरेक्टली देता है एमएससी को, ठीक है। सारे बेस स्टेशन कनेक्ट होते हैं एमएससी से, ये पता था, थोड़ा सा स्किप हो रहा था दिमाग से, अब आ गया याद अच्छे से कि ट्रांसफर द ट्रैफिक टू एमएससी बीएससी भेजता है, ठीक है। बेस स्टेशन कंट्रोलर क्या होता है भाई उसका आइडिया ही नहीं थी, तो मैं एमएससी मोर देन 2 बेस स्टेशन देयर विल बी एस कनेक्टेड टू बेस स्टेशन कंट्रोलर्स, ठीक है। काफ़ी सारे बेस स्टेशन है, तो भाई बीएससी से क्यों है, सीधा एमएससी से क्यों नहीं है। विल एक्ट एज अ राउटर बेस स्टेशन एज अ राउटर प्रोवाइड रूट वांट टू कनेक्ट M1 to M2 which lies in the base station, तो and connect with this and it's a mobile switching center and heart of the cellular switching function resulting in each and contains number of a cell। देखो भाई सीधी बात बोल दी इसने, इट कंटेन्स नंबर ऑफ अ सेल, कई सारे सेल को मैनेज करता है ये। हैंडलिंग ऑल द कनेक्शन इन एमएससी देयर आर थिंग्स लाइक एचएलआर एंड वीएलआर हमें पता है, सेलुलर नेटवर्क आर्किटेक्चर हमें पता है, पीएसटीएन हमें पता है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। सेल का शेप हेक्सागोन क्यों होता है ये पता है हमें, बाकी क्यों नहीं रखते ये पता है। क्राइटेरिया कैसे हुआ था, ज्योमेट्रिक शेप, एरिया, ओवरलैप, सेल शुड बी, ये ना जो भी है थोड़ा सा पता है इसका। एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है 87% होती है, आई थिंक 83% होती है हेक्सागोन की, बस ये बात खत्म। एरिया ऑफ हेक्सागोन मैक्सिमम होता है, ठीक है। हेक्सागोन के बारे में बहुत बातें करी हैं, इतनी बातें नहीं पता हमें बस हेक्सागोन इसलिए पता है कि एरिया ऑफ हेक्सागोन 83% है, तो एक लाइन मेरा 2 पन्ने को बस इतना है, पता नहीं पर मतलब ये सही है चीज़ है नहीं, बट हाँ नो गैप इज देयर, नो ओवरलैप इज देयर, दो चीज़ें रट लो, नो गैप नो ओवरलैप और एरिया परसेंट 83, बस बात खत्म। सर्कुलर शेप एंड नो ओवरलैप होना चाहिए, नो गैप होना चाहिए, ज्योमेट्रिक शेप होना चाहिए, नो ओवरलैप नो गैप है ओवरलैप इंटरफेरेंस दिस गैप से होता है कि लेस कवरेज एरिया, वो तो पता ही है भाई ये सब चीज़ें। तो ओवरलैप से इंटरफेरेंस होता है कि दोनों एक ऊपर चढ़ गए, तो हेक्सागोन 83% एरिया ऑफ हेक्सागोन। फ्रीक्वेंसी रीयूज क्या होता है, इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजिंग अ सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट इनेबल्स टू एक्सपैंड। फ्रीक्वेंसी रीयूज क्या होता है, ठीक है बताओ यार। फ्रीक्वेंसी रीयूज की मतलब हाँ कि इट इज अ कंसेप्ट ऑफ रीयूजिंग अ सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इट इनेबल्स टू एक्सपैंड टू सिस्टम टोटल कैपेसिटी विदाउट द नीड ऑफ एक्सप्लेन हाई पावर एंटीना, कि मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, कम फ्रीक्वेंसी से हम काम चला लेंगे कि रीयूज़ कर लेंगे फ्रीक्वेंसी को, भाई बंदों को क्या जरूरत है फ्रीक्वेंसी डालने की ज़्यादा, तो रीयूज़ कर लेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रीयूज़, फिक्स्ड रीयूज़ होता है, डायनेमिक रीयूज़ होता है। अब कौन से सेल की फ्रीक्वेंसी हम उठाएंगे, हम अपने एडजेसेंट की नहीं उठानी चाहिए हमें, और नॉन और कैन बी प्लेस्ड इट कैन बी यूज्ड देन predefined set of channels are allocated to the cell, okay, and a fixed frequency is a predefined set of channels are allocated to a cell, if a cell of the predefined channel are in the use then no new service can be placed, ठीक है।
अच्छा, तो सारे हर एक सेल को हमने कुछ चैनल दे दी कि भाई ये 5 चैनल है तुम्हारे पास, ठीक है, और वो फिक्स्ड है, वो पहले से ही दे रखे हैं, डायनेमिक कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। Hence the cell can be borrow cell from other cell which are called frequency borrowing. Known cells can be, एक सेल बोरो कर सकता है दूसरे बंदों से, ठीक है। डायनेमिक फ्रीक्वेंसी यूज का मतलब है नो डिफरेंट प्री डिफाइंड सेट ऑफ द चैनल प्रोवाइड हैव दिस सेलुलर नेटवर्क व्हिच रिक्वेस्ट फ्रीक्वेंसी बैंड फ्रॉम एमएससी आर टू बी डिमांड फ्रीक्वेंसी बैंड आर रिक्वेस्टेड फ्रॉम एमएससी एंड लोकेटेड दैट फ्रीक्वेंसी, जो भी फ्रीक्वेंसी मांगता है एमएससी उसे दे देता है। अच्छा भाई, वरना वो फ्रीक्वेंसी बोरो करता है उससे जिसकी यूज हो रही है। हाँ भाई, आज से सेल का शेप हमें पता है, ये मिनिमम डिस्टेंस की दौरान चाहिए फ्रीक्वेंसी की यूज़ के लिए, ताकि इंटरफेरेंस ना हो भाई और की बातों से। हैंड ऑफ का पता है कि भाई इट्स एबिलिटी ऑफ ट्रांसफर मोबाइल सिग्नल फ्रॉम वन बेस स्टेशन टू अनदर बेस स्टेशन। या तो एबिलिटी बोल लो या तो नंबर ऑफ काउंट जंप बस बोल लो कि रीज़न फॉर हैंड ऑफ क्या है। मेन रीज़न है मोबाइल डिवाइसेज आर इन वन सेल आर इन अनदर सेल, ठीक है, मूव्स वन सेल टू अनदर सेल, ठीक है। Cell cannot process call capacity hand off to cell 2 cannot process the capacity, तो हैंड ऑफ। अच्छा, तो भाई जब एक ही सेल के अंदर सारा डेटा स्टोर है तो वो ही क्यों नहीं कर लेता सारी कॉल। पर यार कुछ तो तुम्हें चाहिए, सारी दुनिया की कॉल एक सेल तो नहीं कर सकता, एक एमएससी तो नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई तुम देखोगे कैपेसिटी जब बढ़ जाती है देन हैंड ऑफ टू सेल 2, हम दूसरे सेल को बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ सेल 2 इज एक्सटॉस्टेड। जब जिस सेल में ये बंदा है अगर इसकी कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो गई तभी हम दूसरे सेल को देखेंगे, वरना इसी में करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। एंड इन एनएमसीआईडीएम में वैन चैनल यूज, बट एक सेल मान लो जैसे पालम का क्षेत्र है, इसमें भाई सारे बंदे एक साथ ही फ़ोन मिलाने लग गए तो वो सारा मैनेज नहीं कर पाएगा पालम का एमएससी। और मान लो डाबड़ी का एमएससी खाली पड़ा है तो कुछ बंदे ये डाबड़ी के एमएससी में हैंड ऑफ हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ है। ट्रांसफ़र मोबाइल कॉल फ्रॉम वन बेस स्टेशन टू अदर बेस स्टेशन। अच्छा, इस बेस स्टेशन से मतलब बेस स्टेशन वो है जहाँ से वो ओरिजिनेट होगी, तो ज़रूरी नहीं है पालम में बैठे वाले बंदे की फ़ोन पालम से शुरू हो सकता है डाबड़ी से शुरू हो, अगर डाबड़ी वाला खाली है तो। इन सी डी एम में इंटरफेरेंस ऑफ स्मॉल नेबरिंग ऑल्सो नॉन सी डी एम उसी टाइप ऑफ हैंड ऑफ इंटर सेलुलर, ठीक है। इंटर सेलुलर तो होगा ही ऑब्वियसली कि पालम में जैसे कि अगर भरा पड़ा है तो डाबड़ी वाला यूज़ करेगा। इंट्रा सेलुलर सोर्स इंटरनेट एंड द सेम सेल ओनली चैनल इज एक्सचेंज्ड, चैनल को एक्सचेंज कर लिया इन्होंने। हैंड ऑफ ब्रेक बिफोर मार्क्स मेक बिफोर ब्रेकिंग, तो जब ये चैनल, अच्छा हार्ड हैंड ऑफ और सॉफ्ट हैंड ऑफ की सीधी बात बताऊं तो सॉफ्ट वाला पहले पूरा काम सेट करता है, पहले पूरा मेक करता है, चैनल बना लेता है, कनेक्शन बना लेता है, फिर प्रीवियस कनेक्शन को ब्रेक करता है। पर हार्ड हैंड ऑफ जो है ना वो पहले से कनेक्शन तोड़ देगा उसके बाद दोबारा बनाएगा, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है शायद से, तो इसलिए हार्ड हैंड ऑफ है इसका नाम। तो ये बात कर ली हमने भाई सारी उसके बारे में, सेलुलर नेटवर्क के बारे में जो हम कर चुके हैं। स्विचिंग के बारे में मैं करना नहीं चाह रहा क्योंकि भाई कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत बड़ी सी है, बट यहाँ की थोड़ी सी अलग है। डिज़ाइन फॉर टेलीफोन नेटवर्क, देखो बात हो गई ना, सर्किट स्विचिंग डिज़ाइन फॉर टेलीफोन नेटवर्क, ओके। यूजर टाइम व्हेन द ट्रैफिक वाज कॉन्सेप्ट एंड एक्सचेंज कनेक्टेड सेटअप कनेक्शन, मतलब एक ही बात होता है, बात सेम है यहाँ पे भी कि भाई एक ही डेडिकेटेड बात है सर्किट स्विचिंग में, सबको इधर से ही जाना पड़ेगा, कोई अपना नया पाथ नहीं बना सकता, रीऑर्डर नहीं हो सकता, तो बहुत टाइम ले लेगा, इनएफिशिएंट है, पर फटाफट मतलब इसका फ़ायदा क्या होता है कि डिप्लॉय डिले लेस होता है इसमें, आई थिंक, है ना। एंड क्योंकि ना जोड़ने में टाइम लग रहा है ना स्प्लिट करने में टाइम लग रहा है, बस फटाफट भेज दो जो जैसे भेज सको। तो नो ओवर आउट ऑफ द पैकेट ऑर्डर, नो out of packet order header are used for address and source and destination port, ठीक है। and advantages of setup, no header is used, ठीक है। insert और deploy time efficiency इसकी बहुत कम होती है और continuous flow होता है, no। अच्छा, तो इसमें सब निकाला इन्होंने रिसोर्स फॉर दिस ट्रांसमिशन टाइम ऑन 2+2 एंड ये पता नहीं क्या है ये एफिशिएंसी और प्रोपगेशन डिले, ट्रांसमिशन टाइम, थ्रूपुट। पैकेट वाले ने बता दिया कि भाई फटाफट मेरे को तो डिवाइड कर दो पैकेटों में, हेयर आर द ट्रैक ऑफ द पैकेट इन ईच वन लेयर
डेटा ऑलवेज ट्रांसमिट इनटू पैकेट, और फिर वो पैकेट कैसे जा सकते हैं, या तो डेटा के थ्रू, डेटाग्राम अप्रोच के थ्रू जाएंगे, या वर्चुअल सर्किट के अप्रोच के थ्रू जाएंगे। डेटाग्राम सर्किट नेटवर्क लेयर का पार्ट है, ये डेटा लिंक लेयर का पार्ट है। स्टोर एंड फॉरवर्ड एंड रिले थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि देखो भाई डिवाइड करने में टाइम लगना है और फिर उसको रीऑर्डर करने में भी टाइम लगना है, ठीक है। डेटाग्राम सर्विस एंड वर्चुअल सर्किट सर्विस एंड, ठीक है, इसमें कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन लेस होता है, इसमें कनेक्शन जनरेट करना पड़ता है, तो वैसा कुछ है, ठीक है। नॉर्मल सर्किट स्विचिंग मैसेज स्विचिंग के बारे में बातें हैं तो नॉर्मल बातें हैं, देख सकते हो बस। चलो ठीक है, चलो फिर इतना ही करते हैं, ओके बाय।